Hi everyone, welcome back to my channel. Today I will be reviewing two face washes. एक्चुअली ये कंपैरिजन वीडियो है दो अलग अलग ब्रांड्स का. जेजू वॉल्केनिक पोर क्लेंजिंग फोम मैं 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ. इनिशियली मैंने इनिसफ्री से स्टार्ट किया था एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट. बट 2 महीने पहले मैंने द फेस शॉप की जेजू वॉल्केनिक पोर क्लेंजिंग फोम को परचेज किया. सो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन दोनों का. ये एक डिटेल्ड वीडियो है. पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ आएगा कि कौन सा क्लेंजर आपको ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा आपको ट्राई करना चाहिए, ये आप समझ पाएंगे. मैं पहले इन दोनों क्लेंजर्स के बारे में बताऊंगी, फिर इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी और लास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. जेजू वॉल्केनिक ऐश, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोरस होता है. इस वजह से वो ऑयल या सीबम को बहुत अच्छे से निकाल पाता है. जेजू वॉल्केनिक ऐश कॉमन है दोनों ही फेस वॉशेस में. स्टार्ट करती हूँ इनिसफ्री जेजू वॉल्केनिक पोर क्लेंजिंग फोम से. ये 150 ml की पैकेजिंग है. इसकी प्राइस है 650 रुपीज़. This is very affordable because it lasts for 4-5 months even if you use it twice in a day. This is SLS and paraben free. Very tiny amount lathers up very nicely, so you need to take a little bit of it to wash your entire face. It will make your face squeaky clean, but dry skin people will not like it. It can be very drying for them. It unclogs your clogged pores. It can minimize your pore size too, but I did not experience such thing. It is effective in removing traces of makeup. It has small beads in it, but it doesn't mean anything. आप कभी भी scrubbing feel नहीं करेंगे. As you can see, this is white in color. Consistency is creamy and thick. It does absorb sebum very well. If we talk about ingredients, it doesn't contain any harsh chemical, but ingredient list is full of chemicals. There's so many acids in it. Perfume, but perfume is very mild. In fact, it is soothing. Ingredients descending order में है या नहीं, I'm not sure. But as face wash white color का है, I think volcanic ash कम amount में use है. I'm saying it because ingredient list में volcanic ash third last है. Now let me talk about the Face Shop Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. इसकी क्वांटिटी है 150 ml और इसका प्राइस है 690 रुपीज़. It also comes in a squeezable tube, but it takes little effort to dispense the product. Consistency is little runny. It also contains Jeju ash, which is known for its sebum adhering quality. For cleansing, very little amount is needed. It cleanses pores deeply but doesn't work on existing clogged pores. It gives clearer complexion. It makes skin squeaky clean, removes makeup residue, prevents breakouts caused by excess sebum production, but it is also not for dry skin people. The claim of controlling excessive sebum is right. It keeps my face oil free for 5-6 hours. I have experienced less formation of whiteheads and blackheads under my lower lip area and around my nose area, but it doesn't shrink pores. It has very herbal kind of fragrance and I really like it. अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है. इनिसफ्री की पैकेजिंग ज़्यादा स्टर्डी है. प्रोडक्ट इजीली हम डिस्पेंस कर सकते हैं. द फेस शॉप की फेस वॉश को स्क्वीज आउट करने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है. इनिसफ्री क्लेंजर का कलर वाइट है. द फेस शॉप क्लेंजर का कलर ग्रे एंड पिंकिश है. एंड आई थिंक वॉल्केनिक ऐश की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है. इनिसफ्री ज़्यादा ड्राइंग है और द फेस शॉप कम ड्राइंग है. फ्रेगरेंस दोनों की माइल्ड है, बट द फेस शॉप की फ्रेगरेंस बहुत सूदिंग है, हर्बल है.
कुछ बेसिल जैसी स्मेल आती है इसमें से। इनिसफ्री क्लेंजर की कंसिस्टेंसी थिक है और द फेस शॉप की कंसिस्टेंसी थोड़ा रनी है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं, जैसे दोनों में जेजू वॉल्केनिक ऐश है, दोनों डीप पोर क्लेंजर हैं, दोनों ही फेस को ऑयल फ्री रखते हैं 5-6 घंटों के लिए। इंग्रेडिएंट्स में एक दो चीज़ें कॉमन भी हैं, जैसे वॉल्केनिक ऐश और लॉरिक एसिड। द फेस शॉप में कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे फ्रूट ऑयल, लेमन पील, लेवेंडर ऑयल और मेंथॉल। And because of all that stuff, the face of Jeju Pore Cleanser is more nourishing in nature and gives refreshing feel. दोनों ही हार्मोनल एक्ने को नहीं रोक सकते, ना ही पोर्स को श्रिंक करते हैं। द फेस ऑफ क्लेंजर मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इनिसफ्री को मैं 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। सो आई हैव अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विथ बोथ ऑफ देम। द फेस ऑफ क्लेंजर लेने से पहले जब मेरे पास इनिसफ्री क्लेंजर था तो मैं सिर्फ इसी पे वीडियो बनाना चाहती थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये फेस वॉश आपके फेस को परमानेंटली ड्राई कर सकता है। बिकॉज पहले मेरी स्किन, अगर आप पहले से मेरा वीडियो देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि मेरा फेस सुपर ऑयली था, और जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बस टी जोन ही ऑयली है, बाकी रेस्ट फेस चीक एरिया मेरा ड्राई है। दोनों ही फेस वॉश कुछ हद तक पिंपल्स को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम डिफरेंस आता है। फिर भी आपको ब्रेकआउट होगा ही अगर आपको हार्मोनल एक्ने आते हैं तो। द फेस शॉप क्लेंजिंग फोम इनिसफ्री के कंपैरिजन में माइल्ड है, बिकॉज इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट भी हैं। और इन चीज़ों से इम्प्रेस हो कि आई हैव डिसाइडेड टू यूज़ ओनली द फेस शॉप क्लेंजिंग फोम एंड आई विल कीप ऑन रीपरचेजिंग इट। If you are a person who has oily skin and have clogged pores, and if you're a person who likes squeaky clean skin, can give them a try. तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इन दोनों फेस वॉश का, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। Please share my videos with everyone you know and subscribe to it, and I'll see you soon in my next video. Till then, stay beautiful. Bye.